اسلام آباد میں دھماکے کے باعث گورنر ہاؤس میں ہونے والا آج کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال سے متعلق آئی جی اور سیکرٹری داخلہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اجلاس میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے مشاورت ہونی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی حسن، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اب دوبارہ اجلاس کب ہوگا؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو آج 12 بجے گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد دھماکے کے بعد یہ اجلاس کو فوری طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے کچھ دیر تاخیر میں بعد جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اب قائد ایوان کا انتخاب کے حوالے سے کیا تاریخ رکھی جاتی ہے، کیونکہ آج جہاں پر گورنر ہاؤس میں اہم بیٹھک ہونی تھی اور یہاں پر اجلاس ہونا تھا کہ قائد ایوان کا انتخاب کے کون سی تاریخ رکھی جائے، کیونکہ حمزہ شہباز شریف لاہور میں موجود نہیں، وہ امریکہ تھے، پھر لندن آ گئے، اور بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ جب پاکستان آئیں گے تو قائد ایوان کا انتخاب جو ہے وہ اس کی تاریخ رکھی جائے گی، اور اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے عدالت میں جا چکا ہے۔ جس طرح سارا دن گزشتہ روز جو ہے یہاں پر سیاسی اہم بیٹھک جاری رہی، مشاورت جاری رہی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے کہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 130 کی کلاس 7 کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور آئین پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ البتہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ آج پنجاب اسمبلی پہنچیں گے اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے جو ہے وہ ان کے اس میں بھی شریک ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ وہ عدم اعتماد جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے آئی ہے اس پر بھی آج جو ہے وہ ووٹنگ کرانے کا ان کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے حسن، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میں سیاسی بحران، تحریک انصاف اور کافلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں گورنر پنجاب کے اقدام کے خلاف لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کا آج پنجاب اسمبلی میں آنے کا فیصلہ۔ مزید ہمیں بتائیں گے لیاقت علی۔ جی لیاقت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ڈیولپمنٹ گزشتہ رات کی گئی تھی، اب اس کی جوابی حکمت عملی کے لیے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ یہاں پر جو کمیٹی روم میں اجلاس بلایا گیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اس اجلاس میں خود شریک ہوں گے اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی دیگر لیڈرشپ بھی اس اجلاس میں شریک ہوگی۔ بنیادی طور پر ایک تو گورنر پنجاب کے اقدام کے خلاف جو ہے اس میں جو سیاسی سطح پر لائحہ عمل اختیار کرنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا آج چونکہ 2 بجے اجلاس بھی ہے تو اس اجلاس کے لیے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ تو صورتحال اس وقت یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی واپس لے لی ہے۔ ویسے بھی تکنیکی طور پر اگر گورنر پنجاب کا جو آرڈر ہے اس کو درست مان لیا جائے جس کے تحت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے از خود جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ کل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون نے جو ہے ایک رسمی کارروائی کرتے ہوئے یہ عدم اعتماد کی تحریک تھوڑی دیر قبل جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ سے واپس لے لی ہے۔ چیف وپ جو ہے مسلم لیگ نون کے خلیل طاہر سندھو، انہوں نے یہ باضابطہ طور پر غزالی بٹ، ذیشان اور دوسرے جو ایم پی ایس تھے ان کے ساتھ مل کر یہاں اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچے اور اسپیکر جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس سے صدا کی کہ ہم اپنی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ واپس لیتے ہیں۔ اگر وہ واپس نہ بھی لیتے تو وہ ٹیکنیکلی کل ہو چکی ہے، کیونکہ اب چودھری پرویز الہی اس منصب پر نہیں رہے جس کے لیے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی۔ تو اب کاف لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی آئندہ حکمت عملی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مرتب کرے گی۔ خود وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو ہے وہ اپنے وکلاء کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں یہ بتائیے گا، اگر جس طرح تحریک عدم اعتماد واپس لی ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد اگر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے تو پھر تو بڑا معاملہ آسان ہو جائے گا کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ پنجاب میں اسمبلی اگر انہوں نے تحلیل کرنی ہے تو تحلیل کر دیں گے، کنٹینیو کرنا ہے تو کنٹینیو کریں گے۔ اس حوالے سے نون لیگ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک آپ نے بہت انٹرسٹنگ کویسچن کیا ہے کہ اگر عدالت سے ریلیف ملتا ہے
लेकिन लग ये रहा है कि जो भी अदालत से रिलीफ होगा वो शायद अबूरी रिलीफ हो, क्योंकि ये केस अभी चलेगा कुछ रोज़। मौसम सरमा की ततीलात भी हैं, चूँकि हाई कोर्ट में जजेस की कमी का भी सामना होता है। तो अगर तो बराह रास्त मुकम्मल रिलीफ मिल जाता है तो फिर उसके बाद तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इस बात के लिए आज़ाद होंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नहीं कि वो असम्बली अगर डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है। क्या चौधरी परवेज़ इलाही को जुज़वी रिलीफ मिलता है, मुकम्मल रिलीफ मिलता है, या बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता। इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है, जब उसकी समाअत होगी तो उसके फ़ैसले से ही अंदाज़ा होगा कि आंदा सियासी मंजरनामा क्या बनेगा। लेकिन अगर हम मफरूज़े की बुनियाद पर अगर फ़र्ज़ करें कि अगर उन्हें मुकम्मल रिलीफ मिलता है तो फिर तकनीकी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक उनके ख़िलाफ़ नहीं होगी, तो वो असम्बली डिज़ोल्व करने में आज़ाद होंगे। लेकिन लगता है कि मामला तभी कुछ दिन लेंगे, शायद इतनी आसानी से तमाम अहदाफ हासिल ना हों। जी ठीक है, इस बारे मज़ीद भी आपसे मालूमात लेते रहेंगे। लियाकत, आपको बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई राजा बशारत कहते हैं विफाकी हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर की तरह गवर्नर पंजाब को भी खराब कर दिया। वजीर आला को किसी ने एतमाद के वोट के लिए कहा ही नहीं। आज का एजेंडा प्राइवेट मेंबर डे पर मबनी है। मंगल वाले दिन का एजेंडा है, ये फ्राइडे को लिया जाएगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आज प्राइवेट मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर्स का एजेंडा आज लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अहमकाना फैसला हुकूमत का, और जिन मशीरों ने और जिन मशवरा देने वालों ने पहले डिप्टी स्पीकर का बेड़ा गर्क किया था, अब उन्होंने गवर्नर साहब का बेड़ा गर्क। हमारे मास वाए उनको तकरीबन 10-12 लोगों के, ये मिसाल के तौर पे कल हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुसैन जानिया के जी साहब मौजूद थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो रात को नहीं आए। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। उन्हें अदालत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय एतमाद का वोट लेना चाहिए। अदालत भी एतमाद के वोट को ख़त्म नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट किया। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा मजीद क्या कहा है उन्होंने अपने ट्वीट में? जी, रहनुमा मुस्लिम अताउल्लाह तारड़ ने वो जो जानिब से वज़ीर आला को का मामला है, उसके बाद जो अदालत में से रुजू किया गया है, उस पर जवाब देते हुए बयान किया कि ये अदालत का रास्ता है। परवेज़ इलाही को चाहिए कि आप भी समाज का वोट ले लें और उनके पास समाज का वोट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मजीद अपने बयान में कहा कि अदालत भी समाज के वोट को खत्म नहीं कर सकती, कानूनी तौर पर हर हाल में करना ही पड़ेगा। शुक्रिया सलमान। रात के अंधेरे में जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। रहनुमा पीटीआई मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। कहती हैं गवर्नर ने आधी रात के बाद आइन शिकनी करके कानून का मजाक बनाया। गवर्नर गैर आइनी तौर पर करोड़ों आवाम के नुमाइंदे को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। हम किसी भी सूरत गैर आइनी इक़दामात को नहीं मानेंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब जमशेद चीमा, उन्होंने आज जो है वो गवर्नर पंजाब के इकदाम को हद से तनकीद बनाया है और कहा है कि गवर्नर गैर आइनी तौर पर करोड़ों आवाम के नुमाइंदे को डी नोटिफाई नहीं कर सकता। रात के अंधेरे में एक जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। इनको इस आइन शिकने पर जो है वो इनके खिलाफ सदर मुमलिकत को रेफरेंस भेजा जाएगा और मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए कानून शिकत गवर्नर को निशाने इबरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत गैर आइनी इक़दाम को नहीं मानते और गवर्नर के इक़दाम को अदालत ने चैलेंज कर दिया है। अवामी अदालत में भी इंसाफ के असूल पे ये जरूर जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने हदफ तनकीद बनाया है गवर्नर को, जिसमें उन्होंने मजीद कहा है कि रात के अंधेरे में जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया है। रहनुमा पीटीआई मुसर्रत जमशेद चीमा ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने मजीद कहा है कि गवर्नर ने आधी रात के बाद आइन शिकनी करके कानून का मजाक बनाया है। गवर्नर गैर आइनी तौर पर करोड़ों आवाम के नुमाइंदे को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। हम किसी भी सूरत गैर आइनी इक़दामात को नहीं मानेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं के ट्वीट इस वक्त सामने आ रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने यह ट्वीट किया है जिसमें वो लिखती हैं कि रात के अंधेरे में जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया है। गवर्नर ने आधी रात के बाद आइन शिकनी करके कानून का मजाक बनाया है।
जी बिल्कुल, ये ट्वीट्स का सिलसिला जारी है। नून लीग की जानिब से भी ट्वीट किए जा रहे हैं, सीनियर लीडरशिप की जानिब से, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की जानिब से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। साथ ये भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान के पास रेफरेंस भेजा जाएगा गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाने के लिए। सियासी मंजरनामे पर नई पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई। लीगी खलील ताहिर कहते हैं परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल ना कर सकने पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, इस तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई है, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला करते हुए वजीर आला पंजाब, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है। और इनकी जानिब से बताया गया है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल ना कर सकने पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं और सिर्फ वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक एतमाद वापस ले रहे हैं। और क्योंकि जब ये मौसर ही नहीं रही और जब वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद ये परवेज इलाही के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके हवाले से जो तहरीक एतमाद जमा हुई थी वो गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए उन पर जो है आज वोटिंग नहीं हो सकती। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बताया गया है कि स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर जारी रहेगी और परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए लीगी अरकान असेंबली, जिसमें चीफ व्हिप ताहिर खलील सिद्धू, मियां मरहूम अहमद, गजाली सलीम भट्ट, ज़ेशान नफीस भी मौजूद थे, जिन्होंने दरखास्त पर साइन करते हुए ये तहरीक जो है ये वापस ली है। अब जो है आज अगर देखा जाए तो पंजाब असेंबली में जो सर्कस देखने को मिलेगी वो सिर्फ ये होगा कि वहां पर जो है तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई है, वो पैनल ऑफ चेयरमैन अगर इजलास की सदारत करेंगे तो फिर जो है उनके हवाले से तहरीक अदम एतमाद होगी और इनमें जो है पता अंदाजा होगा कि कौन इसमें तो जो खुफिया। ठीक है हसन रजा, ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब और काफली की जानिब से भी तो पिटीशन दायर कर दी गई है, अभी अदालत में अभी उनका फैसला आना बाकी है कि डी नोटिफाई हुए हैं या नहीं, तो ये कबल अज़ वक्त इकदाम नहीं था कि वापस ले लिया गया है अदम एतमाद की तहरीक को? देखिए, ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला जो लिया गया वो अपनी तरफ से कानूनी और आइन के मुताबिक चलते दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून यानी पीडीएम अपनी जो है मुताबिक जहाँ से उनको फायदा मिलता है वो आइन और कानून की तशरीह अपने मुताबिक करते हैं और काफ लीग जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तशरीह जो है कानून और शिकों की और आइन की वो अपने मुताबिक करते दिखाई देते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि गवर्नर पंजाब ने जिस तरह परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब परवेज इलाही की जानिब से तो 5 सफात पर मुस्लिम दायर दरखास्त कर दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को खत लिखा ही नहीं। और ये बात लॉजिकली अगर देखा जाए तो वजीर आला यानी परवेज इलाही का इसमें क्या कसूर होगा? उन्होंने स्पीकर से खत खताबत जारी थी। जी बिल्कुल, ये सारी बात हसन स्पीकर पर डाल दी गई। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, आप ये बताएं, आपकी तो बीट भी आप कवर भी करते हैं, ये भी इत्तलात हैं कि कल दोपहर में नोटिफिकेशन तैयार कर दिया गया था, फिर चीफ सेक्रेटरी की रजामंदी उन्होंने रजामंदी जाहिर की, उसके बाद फिर ये रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो क्या इत्तलात है आपके पास इस बारे? इत्तलात ये है कि परसों को ही तकरीबन 4 बजे के करीब, पौने 4 बजे के करीब नोटिफिकेशन करने के हवाले से जो है वो ये तैयार कर लिया गया था वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से। लेकिन अब उसमें क्योंकि हमें दरामद करवाना था और ये सिर्फ जायजा लिया जा रहा था कि हम जब स्पीकर के खत खताबत का मामला किसी साइड पर लगे तो हम कोई एक्शन लें। और लग यही रहा है कि सारे सिनारियों से कि अदालत ये कह सकती है कि हम परवेज इलाही को डी नोटिफाई का जो इक़दाम है इसको जो है वो खत्म करते हैं, उनको तहलील करते हैं, तहलील यानी सूबाई कैबिनेट और परवेज इलाही को बहाल करते हैं और 10 दिन का ये टाइम दे सकते हैं। ठीक है हसन रजा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाहिद आबिद की तरफ बढ़ते हैं। जाहिद, बताइएगा क्या सिनेरियो बन रहा है इस वक्त पंजाब असेंबली में? पंजाब असेंबली में सियासत बड़ी तेजी से अपने रंग दिखा रही है और इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है उसमें एक सवाल बहुत अहम है कि परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस क्यों नहीं ली गई। इसमें जो एक चीज सामने आ रही है कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है तो वजीर आला की बजाय अपोजिशन को अपने नंबर शो करने होते हैं और वोट पूरा करना होता है, जबकि वजीर आला को उसमें अपने नंबर शो नहीं करने होते। और इस वक्त जो गुज़श्ता पहले एक केस हो चुका है हमजा शहबाज वाले केस में, उसमें हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो सूरत पैदा हुई थी कि जो भी मुनहरफ अरकान वोट देता है वो डी सीट हो जाता है। तो इसलिए ये
नून लीग के लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो 176 अरकान जी। के साथ वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान पेश करते, और अगर ठीक। पीटीआई या काफ लीग के अरकान के वोट लिए जाते तो वो यकीनन 20 सीट होते और इलेक्शन भी दोबारा होता। इसलिए तकनीकी तौर पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब करवाना नून लीग के लिए इंतहाई मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन था। ताहम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ चूंकि खुफिया रायशुमारी होती है, इसलिए वहां पर कामयाबी के इम्कान काफी ज्यादा हैं और अपोजिशन उस पर खेल सकती है। इसके अलावा जो इस वक्त सूरत देखी जा रही है, जैसा कि कहा जाता है कि पीटीआई के बाद नाराज अरकान है जो कि वोट नहीं देंगे वजीर आला को, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने अच्छा आप को जाहिर, गैर ये बताइए, हाजिर पंजाब करें। असेंबली का आज सेशन भी है, तहरीक अदम एतमाद तो टेक्निकली नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने वापस ही नून लीग ने ली। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। आज ये टेकअप भी की जाएगी जब सेशन होगा असेंबली का। तो क्या आज असेंबली का सेशन होगा? क्योंकि एक जानिब तो पीटीआई और काफ लीग जो है वो उन्होंने अदालत का भी रुख किया है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले में आज टेकअप होगी ये? सूरत देखी जा रही है। उस वक्त स्पीकर सेक्रेटरीट जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। गो के तहरीक अदम अगर जमा हो जाए तो स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकते और पैनल ऑफ चेयरमैन इजलास की सदारत करते हैं। अब देखना यह है कि पैनल ऑफ चेयरमैन इस तमाम कार्रवाई को किस तरह आगे लेके बढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे करार देने की वजह से ये इम्कान मौजूद है कि आज इसको टेकअप ही ना किया जाए, क्योंकि पीटीआई जराए का कहना है जो असेंबली सेक्रेटरीट है उसके मुताबिक 3 रोज के अंदर कार्रवाई शुरू होना और 7 रोज के अंदर उसे इख्तिताम पजीर करना लाजमी होता है। इसलिए इस हिसाब से भी अभी मजीद इस वक्त को तूल दिया जा सकता है इस केस को। इसमें ये कोशिश की जा सकती है कि इसे अगले पीर तक ले जाया जा सके। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर यकीनी देखी जा रही है। उसमें सियासी हालात किस करवट बैठेंगे, इसके लिए यकीनन अदालत के साथ साथ सियासी माहौल में भी गर्मी देखी जा रही है। और इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अब अदालती मामला तो अदालत ने ही देखना है वो कितने दिन में क्या फैसला करते हैं। क्या हो सकता है पहली पेशी पर ही इसका कोई ना कोई मुख्तसर फैसला जारी कर दिया जाए या इसे मजीद किया जाए। ताहम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए अब सियासी मैदान में ही जोर लगेगा और इसके लिए चूंकि खुफिया बैलेट होना, इसलिए अपोजिशन को उम्मीद है कि वो जो नाराज अरकान पीटीआई ठीक है जाहिद, आपने तफसीलन अपडेट किया। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों ने तफसीलन अपडेट किया। शुक्रिया आप दोनों का। वक्त को तूल दिया जा सकता है इस केस को। इसमें ये कोशिश की जा सकती है कि इसे अगले पीर तक ले जाया जा सके। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर यकीनी देखी जा रही है। उसमें सियासी हालात किस करवट बैठेंगे, इसके लिए यकीनन अदालत के साथ साथ सियासी माहौल में भी गर्मी देखी जा रही है। और इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अब अदालती मामला तो अदालत ने ही देखना है वो कितने दिन में क्या फैसला करते हैं। क्या हो सकता है पहली पेशी पर ही इसका कोई ना कोई मुख्तसर फैसला जारी कर दिया जाए या इसे मजीद किया जाए। ताहम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए अब सियासी मैदान में ही जोर लगेगा और इसके लिए चूंकि खुफिया बैलेट होना, इसलिए अपोजिशन को उम्मीद है कि वो जो नाराज अरकान पीटीआई ठीक है जाहिद, आपने तफसीलन अपडेट किया। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों ने तफसीलन अपडेट किया। शुक्रिया आप दोनों का। चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का मामला है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत करेगा। आईनी पटिशन में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली, हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। जी बिल्कुल, आपको इस अहम मामले के हवाले से अपडेट करें। चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का ये मामला है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत करेगा। आईनी पटिशन में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली, हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया और कुछ ही देर के बाद ये समाअत शुरू होगी। गुलबर्ग में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल उसके बाद बनी है, जो पंजाब की सूरत हाल उन्होंने बनाई है, जिस तरह पंजाब के अंदर पंजाब के वसाइल के साथ, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और खान साहब की तहरीक जो सो कॉल्ड तहरीक थी वो डेमोक्रेटिक स्टेबलाइजेशन की नहीं बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करने की वो तहरीक जो इमरान खान हमेशा से उनकी जमात का खासा है, उसमें भी पंजाब हुकूमत को उन्होंने एक टूल बनाया, उसका एक इस्तारा बनाया, उसका एक हथियार बनाया। तो हम बार बार उनको कहते रहे और अब जब कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी और खान साहब
असम्बलियां तोड़ने का एक मंत्रा लेके चले हुए थे, और यू टर्न तो उन्होंने लेने ही थे, वो डेटें देते जा रहे थे। और जब से खान साहब का या पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा कि हम असम्बलियां डिज़ोल्व कर देंगे, हमारी इत्तेहादी जमातों का और हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था कि हम इस जमहूरी तसलसल को रुकने नहीं देंगे, और इसके लिए हम असम्बलियों पे और निज़ाम पे होने वाले हर हमले को रोकेंगे, आईनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए। और पाकिस्तान के लोग इस बात के गवाह हैं। आप सारे साथी हमसे सवाल करते थे कि वो खान साहब ने ये कह दिया और असम्बली तोड़ देंगे और वो दोनों असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो हम हमेशा कहते थे कि वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो असम्बलियाँ तोड़ ना सके, वो असम्बलियों को के ऊपर हमलावर ना हो सके। और हमसे सवाल होता था कि जी वो किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे? और हमारा आपको यही जवाब होता था कि हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए असम्बलियों की तहलील का या असम्बलियों पे होने वाले हमले का मुकाबला करेंगे। और आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि गवर्नर साहब ने, गवर्नर पंजाब ने तहरीरी तौर पे पंजाब हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को इस बात से आगाह किया कि बंदी वजू साबिक चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही साहब ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा उनको कोई भी फैसला, क्योंकि वो ऐलान कर चुके थे, यूं तो वैसे वो ऐलान भी एक तमाशा ही है कि खान साहब कहते हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, और परवेज इलाही साहब उसके बाद अगले दिन कहते हैं कि जो जनरल बाजवा के खिलाफ बोलेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। तो ये समझ नहीं आई वो क्या करना चाहते हैं। बहरहाल ये उनका काम है। तो गवर्नर साहब ने उन्हें कहा कि आप एतमाद का वोट लीजिए, बजाय इसके कि वो एतमाद का वोट लेते, वो जो बड़े पुरएतमाद हैं, वो कहते हैं सारे लोग हमारे साथ हैं, कसरत हमारे साथ है, उन्होंने वो ऐसे बहाने बनाने शुरू किए जिसका कोई तमस्कर हो गया, जिसका कि जी एक अजलास जारी हो तो दूसरा अजलास नहीं हो सकता। ये भी एक तमाशा है। बजट का अजलास पंजाब का कोई 5 महीने जारी रहा जी, 5 महीने, तकरीबन 5 महीने जारी रहा। जून से शुरू है अब तक है, और दरमियान में शायद एक दिन उन्होंने स्विच किया और उसी दिन यानी रात को अजलास प्रोरोग किया, अगले दिन फिर समन कर लिया, और दावा है कि हमारे पास अक्सरियत है। और ये सारा काम इसलिए था कि कहीं हमें एतमाद का वोट लेने का ना कहा जाए। ये काम हम बहुत पहले भी कह सकते थे, लेकिन हमारा इशू हुकूमत गिराना नहीं है, हमारा इशू पंजाब की हुकूमत हासिल करना नहीं था। हाँ करते काम, लेकिन जब वो निज़ाम गिराने पे आ गए तो हमने कहा कि हम सारे सेफ गार्ड्स इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद वो भाई बड़ा सिंपल इशू है, ये जवाज कि जी अजलास हो रहा हो तो फिर नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहा जा सकता, इससे बड़ा क्या मजाक होगा? ना असेंबली रूल्स में है, ना कानून में है, ना आइन में है, और ना लॉजिकल है। इसलिए कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव, वो किसी सूबे का हो या मरकज का हो, अगर वो ऐवान का एतमाद खो बैठता है तो बेसिकली उसके पास फैसला करने का इख्तियार खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को कोई ऐसी बात ना करें जो बिल्कुल ही खिलाफ आइन हो, जिस तरह से ये रवायत चली आ रही है। दूसरा, आपने हाई कोर्ट का कहा, अदालत आलिया या अदालत उज़्मा जो भी फैसला करेंगे किसी किस्म का, वो जो है वो हमें मंजूर होगा और हम हर तरीके से उसके सामने सर झुकाएंगे। लेकिन इन्होंने जो खत लिखा था, मंजूर भट्टू साहब के केस का हवाला दिया था, ये भूल गए हैं कि PLD 1994 पेज 738 सुप्रीम कोर्ट, 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका फैसला पी साबिर शाह वर्सेस दी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कि चाहे इजलास चल रहा हो ना चल रहा हो, गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो किसी वक्त भी इजलास जो है उसको बुला सकता है। इसलिए लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 9 जजेस की, वो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत हर एक पे बाइंडिंग है। हाई कोर्ट के जजेस पे भी बाइंडिंग है, मुझ पे भी बाइंडिंग है और तमाम अदारों पे बाइंडिंग है। पंजाब के खिलाफ जो डिनोटिफाई किया है गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो ये कबल वक्त नहीं, उन्होंने तो या तो उन्होंने इनकार किया हो ना वज़ीर आला ने कि भाई मैं इत्मीनान का वोट नहीं लेता,
तो इसमें उनका कसूर क्या है? जी इसमें शामिल करें कि इनकार तो स्पीकर ने किया कि मैं इजलास नहीं बुलाता, चले आपने उसकी बजाय जो है वो वज़ीर आला को बुला दिया। चूँकि हालात इस किस्म थे, जिस तरह कल ये उन्होंने गवर्नर हाउस पे अटैक करने की कोशिश की, जितने भी बंदे थे मैं उसमें नहीं जाऊँगा। एक आईनी होता है, फिर यहाँ पर जिस किस्म की चल रहा है, फिर मिनिस्टर इस्तीफे दे रहे हैं, MP इस्तीफे दे रहे हैं। परसों की मीटिंग में 7 मिनिस्टर्स ने कहा खान साहब को कि हम इस्तीफा देते हैं, तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है, खान साहब असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और चौधरी परवेज़ साहब भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ज़ाती तौर पर मैं आपको ओपन ये खबर दे रहा हूँ। इसलिए हमने ये इसको इसलिए किया है ताकि किसी किस्म का कोई गैर आईनी कदम जो है वो ना उठाया जा सके। अभी आज 12 बजे या कल तक या रात तक नया स्केड्यूल जो है चीफ मिनिस्टर का वो जारी हो जाएगा, और फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन यहाँ पे होगा। तो सिंघू साहब, आपको लगता है कि गवर्नर के इस इक़दाम के बाद अमली तौर पर कम से कम पंजाब में 58(2)B बहाल हो गई है? नहीं अंसारी साहब, 58(2)B की बात नहीं, आप इंतहाई मोहतरम है, सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं। ये 58(2)B नहीं, ये सिंपल, ये आप नाम माने यार, मैं तो मानता हूँ। ये बात ये है कि ये बिल्कुल मतलब एक जिस किस्म की ये हो रहा था यहाँ पे कि ना लॉ एंड ऑर्डर को देखा जा रहा है। परसों आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया चैनल पे 167 वारदातें लाहौर में हुई हैं। कहाँ है CCPO, कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है लॉ मिनिस्टर? तो जब आप लोगों को देखने और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आप हर एक गैर आईनी कदम उठा रहे हैं, तो इसलिए ये अंसारी साहब 58(2)B नहीं, बल्कि ये हमने रास्त कदम उठाया जी। सिंधु साहब, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने असेंबली बचाने को जो है लीडर ऑफ द हाउस को जो है डीसीट किया, ये कहना चाह रहे हैं? मतलब जी, लीडर ऑफ द हाउस को डीसीट किया गवर्नर साहब ने, ये क्वेश्चन उनसे बनता है। उन्होंने जो भी उसके बारे में उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं, उसमें उन्होंने पॉइंट 1, पॉइंट 2 बुलेट पॉइंट्स दे के जो हमने हमारे तक जो मैंने देखी है असेंबली किसी जगह पे इसमें सोशल मीडिया पे, जी मुझे नहीं, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मेरा काम नहीं है। वो गवर्नर साहब इम्पार्शियल होता है, हमारा उनसे क्या इस काम का मतलब लेना देना। लेकिन ये है कि जब हालात आप सबके सामने हैं, जिस किस्म के हालात है पंजाब में और जिस किस्म की धींगा मुश्ती चल रही है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। अगर तोड़नी होती तो 17 तारीख को तोड़ देते, ये 6 दिन का टाइम क्यों दिया था? तो ये इसीलिए बार बार कह रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं है और ना उनके पास इतनी जरूरत है कि वो असेंबली तोड़े। खलील साहब ये बताएं कि आपने जैसे फरमाया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, मैं हो नहीं गया। कौन कौन से जो है नाम ज़ेरे गौर हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए? जी अभी कोई नाम ज़ेरे गौर नहीं है, जो भी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियाँ फैसला करेंगी। और अभी स्केड्यूल मैंने ये नहीं कहा कि स्केड्यूल जारी हो गया, स्केड्यूल जारी हो जाए ना जी। मुझे MP अगर आप रहने देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आप मुझे लगता है ये भी सीट भी मुझसे छीनना चाहते हैं, तो मैं कभी भी यात्रा मैं बड़े ख्वाब नहीं देखता, यहाँ तक ही रहने दें। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, एंटी करप्शन से खबर शामिल करेंगे। एंटी करप्शन में शिकायत 4 हफ्तों और इंक्वायरीज 4 माह में निपटाने का फैसला। शिकायत और इंक्वायरीज मुकम्मल करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। हेडक्वार्टर्स और रीजन्स की सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर कहते हैं कि आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर। एंटी करप्शन पंजाब में कंप्लेंट्स 4 हफ्तों में और इंक्वायरीज जो हैं वो 4 माह में निपटाने का फैसला किया गया है। इसमें एंटी करप्शन में नई और जारी कंप्लेंट्स इंक्वायरीज के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर ने हेडक्वार्टर और रीजनल सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी हैं, और इस हवाले से DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर ने कहा है कि अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए ये कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इनमें एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की सतह पर 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जबकि पंजाब भर में रीजन की सतह पर 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इनमें एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में एडिशनल जो DG है वो कमेटी के चेयरमैन होंगे, और उनमें मेंबर जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल शामिल होंगे। जबकि रीजन की सतह पर मेंबर जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल शामिल होंगे। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो DG एंटी करप्शन की जानिब से मरासला जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि मैनुअल और फ्रंट डेस्क, रिपोर्ट करप्शन ऐप, व्हाट्सएप हेल्पलाइन और PM पोर्टल समेत दीगर जराए से जो शिकायत मसूल होंगी उन पर फिलफौर एक्शन लिया जाएगा, और मैनुअल मसूल होने वाली शिकायत को 24 घंटे में रीजनल डायरेक्टर को भिजवाई जाएं और नामुकम्मल मालूमात की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि सिविल कोर्ट और उनके साथ साथ फैमिली मामला केसेस पर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जबकि डिपार्टमेंट्स को भेजे जाने वाली जो शिकायत हैं उनका लिए फैसला जो है वो कमेटी करेगी, और ऑफिसर कंप्लेंट्स 4 हफ्तों में मुकम्मल करेगा, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट हर माह की 5 तारीख को रिपोर्ट हेडक्वार्टर IT विंग को भेजेगा, जबकि तमाम इंक्वायरीज को मुतल्लिका ऑफिसर 4 माह में मुकम्मल करने का पाबंद भी होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इंक्वायरी में मजीद मोहलत डायरेक्टर 2 हफ्ते की दे सकता है, जबकि
अगर इंक्वायरी में मजीद मोहलत चाहिए होगी तो उसमें डीजी एंटी करप्शन से मोहलत लेना होगी, जबकि लीगल विंग के लिए 7 वर्किंग डेज में रिपोर्ट देने का मरासला जारी किया गया है। और इस हवाले से डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर ने कहा है कि अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई ऑफिसर मुकर्रर मुद्दत में इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होता तो क्या उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इस हवाले से डीजी एंटी करप्शन पंजाब का कहना था कि अगर कोई भी मुतल्लिका ऑफिसर, जैसे कि कंप्लेंट्स के हवाले से कहा गया कि वो 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का पाबंद बनाया गया उसको, अगर वो उसके खिलाफ उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता तो उसके खिलाफ उसको नोटिस जारी किया जाएगा, शो का नोटिस जारी करके उससे जवाब तलब किया जाएगा कि इसमें क्या वजह है, उसकी ग्राउंड पेश करेगा। अगर मुतल्लिका ऑफिसर उसके असल हक़ाइक़, उसके डिलेइंग टैक्टिंग के जो असल हक़ाइक़ को पेश नहीं कर सकेगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, डीजी एंटी करप्शन का कहना था कि उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहा है उस इंक्वायरी के खिलाफ अगर वो जो मुतल्लिका उसको टाइम दिया गया है कि वो 6 माह के अंदर उसको इंक्वायरी को मुकम्मल करे, और अगर उसकी जो बेसिक ग्राउंड है उस ग्राउंड के तहत अगर उसको मजीद वक्त दरकार है तो 2 हफ्ते का वक्त जो है वो डायरेक्टर दे सकता है। अगर मजीद उसके ऊपर वक्त लगना है तो जो रीजन डायरेक्टर है वो डीजी एंटी करप्शन को उसके असल हक़ाइक़ बताएगा और उसकी बेसिक जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के तहत डीजी एंटी करप्शन को आगाह करेगा। उसके ऊपर मजीद जो है वो डीजी एंटी करप्शन देखेगा कि आया उसके ऊपर टाइम अगर चाहिए तो डीजी एंटी करप्शन उसके ऊपर टाइम देगा, नहीं तो उससे जवाब तलब किया जाएगा कि ये किस बुनियाद पर इसको डिले किया गया है, इसकी वजह ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। इस हवाले से डीजी एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि अवाम को जो सबसे ज्यादा मसाइल थे कि साल से जो इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स जो हैं वो ताखीर का शिकार थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं एंटी करप्शन के दफातर के धक्के खाते थे। और इन अवाम के मसाइल के हल के लिए ये जो काम है ये किया गया, ये इकदाम इसलिए उठाए गए हैं ताकि लोगों की जो मुश्किलात उनको कम किया जा सके और लोगों की आसानी के लिए जो आम साइलिन है जिनके अप्रोच डीजी एंटी करप्शन तक या डायरेक्टर तक नहीं होती, वो दीगर शहरों में बैठे होते हैं और वो वहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट्स हैं या आईओज होते हैं तो उनके हद तक उनकी जो रसाई होती है। तो इस हवाले से जो डीजी एंटी करप्शन इन काम को शफाफियत इसमें लाने के लिए और आवाम के मसाइल हल करने के लिए उन्होंने ये तमाम ऑफिसर्स को पाबंद बना दिया है तो वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर वो जवाबदेह होंगे। अगर जवाबदेह नहीं होंगे तो उनको उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी 2 साला डिग्री प्रोग्राम 1 साल मजीद चलेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने पॉलिसी में नरमी कर दी है। BA, BSc और MA, MSc को मजीद 1 साल ख़त्म नहीं किया जाएगा। जामियात की जानिब से सेमेस्टर सिस्टम के लिए तैयारियां ना होने की वजह से ये नरमी की गई है। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ। बिल्कुल, ये प्राइवेट कैंडिडेट और निजी कॉलेजेस के लिए की खबर है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो एसोसिएट डिग्री और इसके साथ साथ MA, MSc की जो डिग्री के हवाले से नई पॉलिसी थी उस पर अमल दरामद 1 साल के लिए मजीद रोक दिया गया है और उस हवाले से जामियात को मजीद वक्त दिया गया है कि वो सेमेस्टर सिस्टम के लिए जो है तैयारी मजीद कर लें। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से गुज़श्ता माह जो एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें पहले उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम एसोसिएट डिग्री में नाफिज करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया और अब हायर एजुकेशन कमीशन ने भी इस जो पॉलिसी एसोसिएट डिग्री की उसमें नरमी कर दी है और 1 साल मजीद जो है वो MA, MSc हो सकेगी और BA, BSc भी जो है हो सकेगी। और इस हवाले से जो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन है डॉक्टर मुख्तार, उनका कहना है कि अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी पर अमल दरामद के निज़ाम में जो है वो नकाइस मौजूद है। नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी PhD पॉलिसियों को तब्दील करेंगे, स्टेक होल्डर्स से राय लेकर नई पॉलिसी बनाएंगे और उन्होंने जो टाइमलाइन दी है उसके मुताबिक अगले साल फरवरी तक जो है वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी और उसके बाद जो है इस पॉलिसी को नाफिज किया जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस और इसके साथ यूनिवर्सिटियों में हाल जो है वो अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी के हवाले से जो इंतजाम नहीं थे, लैब नहीं थी, असातिज़ा नहीं थे, तो उसको देखते हुए अब हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 साल मजीद जो है वो अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी पर अमल दरामद जो है उसको रोक दिया है। जी आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। शहर की 158 यूनियन काउंसिल्स नादरा की नादहिंदा निकली। 10,000 से ज़ायद दरखास्तों के पैसे यूनियन काउंसिल्स के जिम्मे वाजिब। ऑनलाइन चार्जेस की अदम अदायगी पर नादरा ने शहर लाहौर की बेशतर यूनियन काउंसिल्स के लॉगिन ब्लॉक कर दिए। यूनियन काउंसिल्स के लॉगिन बंद होने से शहरी मुख्तलिफ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए परेशान। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के बारे। शहर की 158 यूनियन काउंसिल्स नादरा की नादहिंदा हैं। 10,000 से ज़ायद दरखास्तों के पैसे यूनियन काउंसिल्स के ज़िम्मे वाजिब हैं।
آن لائن چارجز کی عدم ادائیگی پر نادرا نے شہر کی بیشتر یونین کاؤنسلز کے لاگ ان بلاک کر دیے ہیں۔ یونین کاؤنسلز کے لاگ ان بند ہونے سے شہری مختلف سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے رل گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، شہری رل گئے ہیں اپنے سرٹیفکیٹس کے لیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی سے متعلق درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے بارے میں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی سے متعلق یہ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اب یہ سماعت اگلے سال ہوگی، 9 جنوری 2023 میں یہ سماعت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی نااہلی سے متعلق یہ سماعت ہے اور درخواستیں جو ہیں وہ بھی یکجا کر دی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے فل بینچ بھی تشکیل دیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں یہ بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ پنجاب میں سیاسی صورتحال کے سبب محکمانہ امور متاثر، محکمہ ہاؤسنگ کے مختلف کاموں پر اٹھنے والے اعتراضات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں زیر التوا۔ ایل ڈی اے کے اے ڈی ایس اور پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے کاموں پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ افسران ایل ڈی اے اور ذیلی ایجنسیز کے 140 آڈٹ پیراز جمع کروانے کے منتظر۔ مزید ہمیں بتائیں گے زین العابدین۔ جی زین، بتائیے گا۔ یہ پنجاب میں سیاسی صورتحال سے اسمبلی امور بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ اس وقت سیاسی صورتحال میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے محکمانہ امور پر کوئی بھی توجہ مرکوز نہیں کی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ ہاؤسنگ کے مختلف کاموں پر اٹھنے والے اعتراضات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں زیر التوا ہیں اور پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے آڈٹ پیراز پر بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حقائق یہ سامنے آئے ہیں کہ محکمہ ہاؤسنگ کے آڈٹ پیراز سے متعلق پری پی اے سی میٹنگ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، لیکن سیاسی صورتحال اور اسمبلی میں کشیدگی کی وجہ سے آڈٹ پیراز پر گفتگو کے لیے کوئی حتمی جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اس میں مالی سال 2019-20 اور 2021-22 میں ہونے والے ترقیاتی کاموں پر آڈیٹر جنرل کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جس میں مبینہ طور پر ترقیاتی کاموں میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر تحقیقات شروع کی گئی، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے یہ تحقیقات کا سلسلہ بند ہو کر رہ گیا ہے۔ اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے ایل ڈی اے واسا اور پی ایچ اے افسران کی جانب سے آڈٹ پیراز پر کوئی جواب نہ دیا گیا۔ ایل ڈی اے اور واسا کے 200 سے زائد ترقیاتی کاموں پر اعتراضات ہیں، جبکہ واسا درجہ حرارت میں کمی اور خشک سردی سے شہری بیمار ہونے لگے ہیں۔ شہریوں کو خشک کھانسی، نزلہ زکام اور دیگر امراض کا سامنا ہے۔ ہاسپٹلز میں خشک کھانسی، نزلہ زکام کے مریضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محمد بلال سے بات کریں گے۔ جی بلال۔ جی بالکل، شہر لاہور کا جو موسم ہے کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے خشک سردی اور سرد موسم ہونے کی وجہ سے جو خشک کھانسی ہے، نزلہ زکام، جو بخار کے مریض ہیں، ان میں بدستور جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اس وقت لاہور کے جو بڑے سرکاری ہسپتال، یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو مریض ہے وہ خشک کھانسی، چرس انفیکشن، نزلہ اور زکام کے سامنے آ رہے ہیں۔ میو ہاسپٹل میں گزشتہ 3 روز کے دوران جو چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی خاصی تعداد میو ہسپتال کی او پی ڈی میں رپورٹ ہوئی اور میو ہسپتال انتظامیہ کے مطابق تقریباً 3 دن میں 4000 سے زائد جو مریض ہیں یہ خشک کھانسی، نزلہ زکام کے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دمے کے جو مریض ہیں، پھیپھڑوں میں انفیکشن کے جو مریض ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے یہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلی فضا میں جانے سے روکیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گرم مشروبات ہے اس کا استعمال کریں اور جو مناسب گرم کپڑے ہیں اس کا بھی استعمال کریں تاکہ اس وقت جو خشک سردی پڑ رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے جو ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہسپتالوں میں جو مریض سامنے آ رہے ہیں ان کو بہترین جو طبی سہولیتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ریلوے کا سسٹم بری طرح متاثر ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بالکل، ہمارے نمائندے فہد امین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی فہد، اس حوالے سے شیڈول متاثر ہے؟ بالکل، میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے اور اس دھند کے باعث جو ہے وہ ٹرینوں کا شیڈول پوری طرح متاثر ہے۔ آج بھی کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ہی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ رحمان بابا ایکسپریس آج 7 گھنٹے کی غیر معمولی تاخیر کا شکار ہے۔ اسی طرح کراچی سے آنے والی کراکرم ایکسپریس 6 گھنٹے 30 منٹ اور پاک بزنس ایکسپریس 5 گھنٹے 45 منٹ کی تاخیر سے آ رہی ہے۔ ملت ایکسپریس
5 घंटे 35 मिनट और जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा से लाहौर पहुंचती है वो 5 घंटे 25 मिनट लेट है। तेजगाम एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट, कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर का शिकार है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका शुक्रिया फहद।